Hello, my dear students. Department of Sanskrit Education Rajasthan welcomes you in online English literature classes for 12th standard. Myself, Munishan Sharma, lecturer, Government Barisht Upadhyay, Sanskrit School, Milonchi, Jaipur. Today's our lesson, a drama, Chandalika, written by Rabindranath Tagore. My dear student, we will learn first about the summary as an introduction to the play Chandalika. First, I will read the introduction of this play in English. After that, I will translate the introduction of this drama in Hindi so that you can understand easily. Introduction to the play Chandalika. Chandalika is written by Rabindranath Tagore. Chandalika is a short play in two acts. It is based on a Buddhist legend, Ananda. The famous disciple of Buddha was one day coming back from a visit and he felt thirsty. He came near a well on the way and asked for water from Chandalika, a girl belonging to the lowest untouchable caste. The girl gave him water and fell in love with the monk. Unable to control herself, she asked her mother, who was well versed in the art of music, to work a spell on him. The spell was found to be stronger than Anand's will. The spell bound monk came to their house at night. He saw the girl spread the couch for him. This made him overcome with the shame and remorse. He prayed inwardly to his master to save him. The Buddha heard the prayer and broke the magic spell. Anand returned from there as pure as he came. This is as we find in the popular Buddhist tale. It shows how the psychic power of the Buddha saves his devotees from the lust of a Chandalgar. Tagore's play entitled Chandalika changes the crude plot into a psychological drama to intense spiritual conflict. The crude plot shows how the psychic power of the Buddha saves his devotees from the lust of a Chandal girl. Tagore, Tagore's play Chandalika is not the story of a wicked girl roused up to lust by the physical beauty of the monk. It is the story of a very sensitive girl, condemned by her birth to despise caste. Anand, a follower of the Buddha, accepts water from her hand and teaches her to judge herself, not by the artificial value that society attaches to the accident of birth, but by her capacity for love and service. His word to her, if the black clouds of Ravana are dubbed Chandal, what of it? It doesn't change their nature or destroy the virtue of their water. The Chandal girl is suddenly awakened to a consciousness of her full rights as a woman by the humanity of Ananda, the great follower of the Buddha. She calls it a new birth. There are three characters in the play, Prakriti, her mother, and Anand. However, Anand does not appear in the play physically. We know him only through the conversation of Prakriti and
her mother. Now I will translate this introduction in Hindi for you. चंडाल का एक छोटा नाटक है जिसमें 2 अंक हैं और यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बुद्ध की एक पौराणिक गाथा के ऊपर लिखा गया है, जिसके अंतर्गत बुद्ध का एक शिष्य जिसका नाम आनंद है वह इंक्लूड है, सम्मिलित है। इसके अलावा प्रकृति जो एक चंडाल गर्ल है और उसकी माँ, ये 3 जो मुख्य किरदार हैं इस नाटक के अंदर वो सम्मिलित हैं। मगर शारीरिक रूप से आनंद इस नाटक में कहीं पर भी हमें दिखाई नहीं देता, केवल प्रकृति और उसकी माँ के वार्तालाप के द्वारा ही उसके बारे में हमें पता लगता है। एक बार आनंद जो बुद्ध का शिष्य था वो एक गांव से वापस लौट रहा था, तो उसे प्यास महसूस हुई और वह एक कुएं के पास आया जो कि रास्ते में था। वहाँ पर उसने चंडालिका जो कि एक बहुत ही निम्न जाति की और अछूत कन्या थी उससे पानी मांगा। वह लड़की पहले तो पानी देने से संकोच करती है, बाद में जब आनंद बार बार कहता है तो वो लड़की उसे पानी देती है और पानी पिलाने के बाद में वह उसके प्रेम की वशीभूत हो जाती है और उस भिक्षु से, बौद्ध भिक्षु जो आनंद है, उसके प्रेम में पड़ जाती है। वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाती है और अपनी माँ से बोलती है कि तू सबसे अच्छा मैजिक जानती है, जादू जानती है, मंत्र जानती है, तो मेरा एक काम कर और अपने इस जादू के द्वारा मेरा जो प्रेमी है बौद्ध भिक्षु आनंद है उसको मेरे पास बुला दे। जो स्पेल था माँ का वह काम करता है, लेकिन पहले तो माँ बार बार मना करती है कि ये काम सही नहीं है, इस प्रकार के सन्यासी के ऊपर, बौद्ध भिक्षु के ऊपर जादू करना उचित नहीं है। लेकिन बार बार हठ और आग्रह के कारण बालहट के सामने वह माँ उस बच्ची का कहना मान लेती है और अपने जादुई बल से आनंद को जबरदस्ती घर बुलाती है। इसके लिए वह अपने मंत्रों का बड़े ही गंभीरता के साथ जाप करती है, जादू करती है। आनंद उसके इस जादुई ताकत से खिंचा चला आता है और उसकी जो इच्छा शक्ति है वो हार जाती है। जब आनंद घर के अंदर आता है और देखता है कि उसके लिए उस लड़की ने वहाँ पर एक पलंग बिछा रखा है, खाट बिछा रखी है, और यह देख कर के वह काफ़ी लज्जित और पश्चाताप करता है, लज्जित होता है और अंदर ही अंदर अपने स्वामी बुद्ध भगवान से वो प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे इस पाप से बचा। तो बुद्ध की जो मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है वह उस स्पेल को, उस जादू को, जो मैजिक जादू है, उस मैजिक को नष्ट कर देती है और आनंद जिस प्रकार से शुद्ध और पवित्र गया था उसी प्रकार से वापस आ जाता है। इस प्रकार से बुद्ध भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, बौद्धिक शक्ति और मानसिक शक्ति है, वो अपने भक्त को बचा लेती है उस चंडालगर की कामुकता से। टैगोर का ये जो प्ले चंडालिका है वो सामान्य रूप से एक आध्यात्मिक और मानसिक ड्रामा है, मानसिक प्ले है, जिसके अंतर्गत एक आध्यात्मिक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, आध्यात्मिक द्वंद्व चलता है। इस सामान्य नाटक के अंदर जो आध्यात्मिक शक्ति बुद्ध भगवान की है वो अपने डिवोटी, अपने भक्त को
उस चंडाल गर्ल की कामुकता से, काम वासना से बचाती है। और चंडाल का कोई एक ऐसी लड़की नहीं है जो केवल कामुकता के द्वारा उत्तेजित होती है। उस बौद्ध भिक्षु की शारीरिक सुंदरता के प्रति वह अंत में जाकर के बदल जाती है। यह स्टोरी कामुक लड़की की नहीं है, बल्कि एक समझदार लड़की की है, जो अपने जन्म से ही एक तिरस्कृत जाति में जन्म लेने के कारण काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस करती है। जो आनंद है बौद्ध भिक्षु का शिष्य, वो उसके पानी को स्वीकार करके उसके हाथ से जब पानी पीता है और उसे उपदेश देता है कि वह अपने आप को समझे, और साथ ही साथ उसकी जो कृत्रिम रूप से जो उसे मूल्य दिए गए हैं समाज के द्वारा, जिनसे वह जन्म के द्वारा अचानक जुड़ गई है, उनको अपने आप से दूर करे, और साथ ही साथ उसके अंदर जो एक क्षमता है प्रेम की और सेवा की, उसे वह पहचाने। बौद्ध भिक्षु अपने शब्दों में उससे कहता है कि यदि काले बादल जो श्रावण महीने के होते हैं उनका रंग चंडाल जैसा होता है, काला होता है, लेकिन उसके अंदर जो पानी होता है वो कभी भी अपनी प्रकृति को नहीं बदलता है और न अपने पानी के गुण को नष्ट करता है। इस प्रकार से जो चंडाल गर्ल है, जो चंडाल लड़की है, प्रकृति है, वो अचानक बौद्धिक रूप से जागृत हो जाती है, सावचेत हो जाती है, और अपने स्थित्व अधिकारों के प्रति सावचेत हो जाती है, जो कि उसे आनंद की मानवीयता के द्वारा प्रदान किए गए, जो कि बुद्ध भगवान का एक बहुत बड़ा शिष्य था। और इसी समय प्रकृति यानी वो चांडाल लड़की अपने आप को कहती है कि आज उसका एक नया जन्म मिला है। यहाँ पर जैसा पूर्व मैंने बताया कि इसमें 3 कैरेक्टर हैं, किरदार हैं, प्रकृति, उसकी माँ और आनंद। लेकिन फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से आनंद यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको चंडालिका का जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और इसके आधार पर जब हम इस ड्रामा को पढ़ करके और इसके प्रश्न उत्तर और समरी लिखना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।